تکمیل محبت۔ میں اس مولوی سے شادی نہیں کروں گی۔ زہرا نکاح کے وقت رونے لگی، لیکن ابا نے زبردستی اس کی شادی حذیفہ سے کر دی۔ سہاگ رات میں وہ لہنگا بدلنے جیسے ہی ڈریسنگ روم میں آئے، وہاں لٹکی جالی دار نائٹی دیکھ کر وہ شرم سے لال ہو گئے۔ ویسے تو مولوی ہے، لیکن شوق دیکھو اس کے۔ زہرا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ حذیفہ کی نرم آواز پر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلے شکرانے کے نفل پڑھ لوں کہ مجھے میری محبت مل گئی۔ زہرا پوری رات اس کی محبت میں بھیگتی رہی، لیکن ایک دن اسے دھچکا لگا جب الماری میں اسے ایک لڑکی کی تصویر ملی، وہ لڑکی حذیفہ کی۔ میں نے کہا نا، میں اس مولوی سے شادی نہیں کروں گی۔ ضروری ہے کہ ایک مولوی کی بیٹی کی شادی کسی مولانا سے ہی ہو؟ زہرا کا لہجہ غصے سے بھرا تھا۔ آہستہ بولو، تمہارے ابا نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اماں نے اسے گھورا تھا۔ ساری زندگی آپ کی کیسے گزری اماں؟ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ ہاں، میں بھی ایک مولوی سے شادی کر کے گھٹ گھٹ کر زندگی گزاروں؟ اس چار دیواری میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی۔ آپ سمجھائیں ابا کو، بے بسی سے اماں کو کہنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اماں مسکرا دی۔ تو فکر کرتی ہوں حذیفہ پڑھا لکھا ایک سمجھدار نوجوان ہے، وہ تمہارے ابا جیسا نہیں، بہت کھلے دماغ کا ہے، 5 وقت کا نمازی، قرآن حافظ، کتنا دیندار بچہ ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ تیرے ابا نے اس سے تیرا رشتہ طے کر دیا۔ اماں کی بات پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حذیفہ جب بھی ابا سے ملاقات کرنے آتا، اس کی نگاہیں جھکی ہوتی۔ اس نے تو آج تک زہرا کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اماں کہہ رہی تھی کہ اس کی خواہش پر ہی یہ رشتہ ہوا ہے۔ لیکن زہرا اپنی گھٹن زدہ زندگی سے تنگ تھی۔ لاکھ اماں کے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابا سے کہیں کہ اس رشتے سے انکار کر دے، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ ابا کا ایک روب اور دبدبا تھا دونوں ماں بیٹیوں پر۔ جب اس نے میٹرک کیا، ابا تو اس وقت اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماں کے سامنے گر گرائی تو اماں کو ترس آ گیا۔ ابا سے گزارش کی کہ اسے آگے پڑھنے کی خواہش ہے۔ پہلے تو ابا نے سختی سے منع کیا، پھر نہ جانے کیسے اجازت دے دی۔ یہ بات زہرا کو بعد میں پتہ چلی تھی کہ حذیفہ نے ابا کو سمجھایا تھا کہ آج کل کا دور نہیں کہ لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا جائے، میٹرک کرتے ان کی شادی کر دی جائے۔ زہرا جتنا پڑھنا چاہتی تھی آپ اسے پڑھنے دیں، اور حذیفہ کی کسی بات کو اماں ٹال دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر وہ کالج جانے لگی، لیکن مکمل نقاب میں، ہاتھوں میں کالے دستانے، چاہے گرمی ہو یا سردی، شوز اور موزے لازمی پہنتی، چہرہ مکمل نقاب سے چھپایا ہوتا۔ اکثر وہ اسے مسجد کے سامنے گزرتی تھی جہاں پر حذیفہ امامت کرواتا تھا۔ صبح سویرے وہ مسجد کے باہر کھڑا ہوتا، جب نظریں جھکائے وہ اس کے سامنے سے گزر جاتی۔ حذیفہ اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتا۔ کتنے سالوں کی چھپی محبت اب ایک تناور درخت بن چکی تھی، لیکن زہرا کو اسے دیکھ کر کوفت ہوتی۔ وہ صرف قمیض شلوار ہی پہنتا، وہ بھی سفید یا پھر آف وائٹ۔ جب بھی اس نے حذیفہ کو دیکھا، زمین میں نظریں ایسے گاڑ کے رکھتا جیسے نہ جانے کون سا ہیرا اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے، جسے وہ تلاش کرتا رہتا۔ کیا خاص رومانس ہوگا اس بندے سے اندر، جبکہ زہرا کو تو شروع سے ہی رومانٹک لوگ پسند تھے۔ اس نے اپنے ہونے والے ہم سفر کے لیے بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ویسے تو اس کی کالج میں کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی، لیکن ہمنا کو اس نے بیسٹ فرینڈ بنا لیا تھا۔ لیکن ایک دن جب اس نے ہمنا کے منگیتر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ویسے تو اسے زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ کسی ایسے مرد کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں، لیکن سچ میں کلین شیو، فٹنگ کی پینٹ شرٹ، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ اپنی گاڑی میں ہمنا کو لینے آیا تھا۔ زہرا کو اس کی قسمت پر بڑا رشک آیا۔ کاش اسے بھی ایسا ہی کوئی ڈراموں فلموں کے ہیرو جیسا ہمسفر مل جائے، دل میں دعا کرتی۔ لیکن جب اماں نے اسے بری خبر سنائی کہ ابا نے اس رشتہ حذیفہ کے ساتھ طے کر دیا، تو اس کے سارے خواب مٹی میں مل گئے تھے۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، جبکہ وہ سارے جہاں سے ناراض اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ پھر ایک دن چپکے سے اماں نے ہی ابا کے کان میں بات ڈالی تھی، اپنی لاڈلی سے بھی ایک بار پوچھ لیتے، وہ اندر سے ہم دونوں سے خفا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ لڑکی کی ایک بار اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی مولوی سے شادی نہیں کرے گی،
जहरा अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन अम्मा की आवाज इसके कान में आई तो वो पूरी जान से कांप गई। थोड़ी ही देर बाद अब्बा का बुलावा आ गया था। वो लब कुचल रही थी बाप के सामने। इस बारे में क्या कहती, हया आड़े आ जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद अब्बा से पूछ रहे थे कि क्यों ज़हरा, क्या कह रही है तुम्हारी माँ? क्या हुज़ैफा में तुम्हें बुराई नजर आती है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी जिंदगी का गलत फैसला क्यों करूंगा? नहीं नहीं अब्बा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो गड़बड़ा गई थी। अगर मौलवी इतने बुरे होते हैं तो आज ये तुम्हारी माँ सामने बैठी है, मेरे साथ जिंदगी की 25 बहारें ना गुजारती। तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है बेटा? वो बड़ी आस से पूछ रहे थे। नहीं अब्बा, माँ बाप भला औलाद की जिंदगी का कोई गलत फैसला क्यों करेंगे? अब्बा जेरे लब मुस्कुरा दिए और अम्मा इससे घूर रही थी। फिर वो फौरन ही कमरे में आ गई। न जाने अब्बा के सामने इससे क्या हो जाता था, वो दिल की बात जुबान पर ही न लाती थी। और आज अब्बा ने इसकी रजामंदी पूछी तो इसने हाँ कह दी। इसका ग्रेजुएशन अधूरा रह गया था, सिर्फ 1 साल ही तो रहता था, लेकिन अम्मा अब्बा ने इसकी रुखसती करने का फैसला कर दिया। घर में शादी की तैयारी के सिलसिले में सब मेहमान आना शुरू हो गए। वो कोने में लेटी रही। तुम तो कहती थी किसी मौलवी से शादी नहीं करूंगी। सुना है कि तुम्हारा होने वाला शौहर एक मस्जिद का इमाम है। हमना इस पर तंज कर रही थी। किसी मौलवी से बेहतर तो मेरा भाई था। कहा भी था मैं अपने भाई का रिश्ता लेने आऊंगी, लेकिन तुमने ही मना कर दिया था। ज़ारा इसकी बात पर उदासी से खामोश रही, लेकिन जब हमना ने हुज़ैफा को स्टेज पर बैठे देखा तो इसे ज़ारा की खुशकिस्मती पर रश्क आया। नूरानी चेहरा लिए हुए वो नौजवान निहायत खुश शक्ल था। जिस तरह उठ उठकर वो आजिज़ी से सबसे मुलाकात करा था, गरूर व तकब्बुर नाम के इसके अंदर कोई चीज ना थी। जबकि ज़हरा मुंह लटकाए बैठी थी। फिर निकाह होने के बाद वो आंसू बहाती रही। इसका बाप एक सख्त गिर, असूल पसंद मौलवी था, जिसने सारी जिंदगी बीवी और बेटी को अपने असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। वो सोचती थी कि अब हुज़ैफा भी आने वाली जिंदगी में इसके साथ यही बर्ताव करने वाला है, इसलिए इस शादी की इसके दिल में कोई खुशी ना थी। फिर थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई। अम्मा ने इसकी रुखसती पर आंसू बहाए थे, लेकिन खुद इसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। इसकी रुखसती मुकम्मल पर्दे में हुई थी। आज तक इसका चेहरा किसी गैर मर्द ने ना देखा था। हुज़ैफा का बचपन से ही इसके घर आना जाना था जब वो बहुत छोटा था। अब्बा के पास सिपारा पढ़ने आता। इसके बाद इसने वहीं पर कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू कर दिया, जहाँ पे अब्बा बहुत बड़े कारी थे, इस मदरसे के निगरान, क्योंकि इसने ज़हरा के बाप के दिल में खास जगह बना ली थी। इसके वालिदैन नहीं थे। एक चचा था जिसने सारी जिंदगी शादी नहीं की, लेकिन काफी साल पहले ही वो ऐसे गायब हुआ कि इसके बारे में कुछ पता न चला था। अब हुज़ैफा अकेले ही अपने घर में रहता था। अपनी मेहनत और कोशिश से इस माशरे में एक मुकाम बनाने में वो कामयाब हो गया। तभी तो ज़हरा जैसे एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से इसकी शादी हो गई थी। अकेले इस कमरे में बैठे इसका दिल होल रहा था। हुज़ैफा के 2-4 दोस्त थे जिन्होंने सारी शादी की तैयारियां की थीं, और 1-2 रिश्तेदार औरतें। तभी एक लड़की अंदर आई थी, गुलाबी रंग का सूट पहने, सर पे दुपट्टा लिए। वो ज़हरा को तनकीदी नजरों से देख रही थी। न जाने क्यों इसकी आंखों में हसद की आग थी। लो भाई, मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से। इसने एक तंजिया गुफ्तगू की। ज़हरा इसकी बात पर हैरान सी बैठी रह गई। मैं आलिया हूँ, हुज़ैफा भाई के दूर परे की, हालांकि बेटी सगी कज़न नहीं हूँ मैं इनकी। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? उलटमार अंदाज में इससे पूछ रही थी। ज़हरा ने नफी में सर हिला दिया तो वो उठकर चलती बनी। काफी देर गुजरी। जब सारे मेहमान रुखसत हो गए तभी हुज़ैफा कमरे में आया था, लेकिन ज़हरा गायब थी। वॉशरूम से आती हल्की फुल्की आवाजों पर इसे पता चल जाए कि वो अंदर है। हुज़ैफा भी सुकून से बेड पर बैठ गया। इसका दिन इसके लिए थका देने वाला लेकिन खुशियों से भरपूर था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि ज़हरा इसकी हमसफर और मुकद्दर की साथी बन जाएगी। कहाँ वो आसमान में चमकता चांद और वो एक तन्हा अकेला जीने वाला, इन सब। लेकिन ज़हरा की इसकी जिंदगी में आने के बाद इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुकम्मल हो गया है। वो पूरी शिद्दत से इसका इंतजार कर रहा था। काफी देर गुजरी तो परेशान सा हो गया।
तभी इसने हल्का सा वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया था। जहरा, आप ठीक तो हैं? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? इसकी नर्म आवाज पर वो उछल पड़ी। जी वो मुझे कपड़े चाहिए। इसकी झिझकती हुई आवाज पर वो फौरन कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं अभी देता हूँ। ये कहते ही इसने अलमारी में से कपड़े निकाल दिए थे। ज़हरा का दिल धक धक कर रहा था। थोड़ा सा वॉशरूम का दरवाजा खोलकर इसने कपड़े थाम लिए थे। अपनी घबराहट पर वो काफी काबू पा चुकी थी। कपड़े मांगने की वजह थी वो जालीदार नाइटी जो वॉशरूम में लटकी थी। ये यहाँ पर किसने रखी थी? इस मौलवी के शौक तो देखो जरा। दिल ही दिल में उसको गुस्सा आ रहा था इस बात पर। कम से कम ये नाइटी पहनकर वो इसके सामने नहीं जा सकती थी। जैसे मेकअप साफ करके और कपड़े तब्दील करके वो वॉशरूम से बाहर आई, हुजैफा सामने वुजू किए खड़ा था। इसके चेहरे से पानी टपक रहा था। जरा ने इसे देखकर चेहरा झुका लिया। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं जब तक 2 नफल शुक्राने के पढ़ लूं, इस मालिक का शुक्र अदा करूं जिसने मुझे मेरी मोहब्बत अता कर दी। हुजैफा के नर्म लहजे और मीठी नजरों ने इसका दिल धड़का दिया था। उंगलियां चटखाते वो बेड पर बैठ गई। 2 नफल पढ़कर वो फारिग हुआ तो वो अपने पांव के नाखूनों से नेल पॉलिश खुरच रही थी। आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? आराम से लेट जाएं, पूरा दिन थक गई होंगी। शादी की मसरूफियात ही ऐसी होती हैं। वो मामूल के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन जिस मोहब्बत से वो ज़हरा की तरफ देखता वो इसकी आंखों में देख ही न सकी थी। शादी में इतनी मसरूफियात के बावजूद इसने अपनी नमाज फरामोश नहीं की थी, जबकि ज़हरा ने सुबह से अब तक एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी। वो अक्सर ही नमाज पढ़ने में डंडी मार जाती थी। ज़हरा करवट लेकर लेट गई थी। ऐसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद नाइट बल्ब की रोशनी कमरे को मुनव्वर करने लगी। इसे अपने बहुत करीब हुजैफा की खुशबू महसूस हो रही थी। तभी बड़ी नरमी से इसने ज़हरा को पुकारा था। ज़हरा, मैं आज आपको पाकर बहुत खुश हूँ। ऐसे लग रहा है मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। हर तरफ बहारें और खुशियां हैं। ज़हरा ने ना चाहते हुए भी करवट बदल ली थी। जैसे सामने देखा, हुजैफा की मोहब्बत भरी निगाहों ने इसके वजूद को अपने अहाते में ले रखा था। वो जो इसके दिल में अपने लिए बहुत बुरा सोच रही थी, अजीब सी नफरत महसूस कर रही थी, वो कहीं दूर कोने में जाकर सो गई थी। बल्कि मोहब्बत पूरी शिद्दत से ज़हरा के दिल में छुपी मुस्कुरा रही थी। हुजैफा ने जैसे इसकी मेहंदी से सजे हुए खूबसूरत हाथ थामे, वो शर्मो हया से पिघल गई। इसकी शोर मचाती धड़कनें हुजैफा की हमराही को कबूल कर चुकी थीं। हुजैफा के संग जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी ये इसने सोचा भी नहीं था। कहाँ वो इससे शादी करने से इनकार कर रही थी। माँ के सामने रो रही थी कि वो एक मौलवी से, एक रोमांस से आरी इंसान, इसके अंदर भला क्या जज्बात होंगे अपनी बीवी के लिए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। हुजैफा इसका यूं ख्याल रखता था जैसे वो कोई नर्मो नाजुक सा गुलाब है। शादी से 1 महीने पहले इसने घर की सेटिंग चेंज की थी, रंगो रोगन करवाया, साथ ही कुछ काम भी करवाया था। वो ज़हरा के इस घर में आने के बाद इसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देना चाहता था। ना सिर्फ एक दीनदार नौजवान था बल्कि इसका इखलाक भी बहुत आला था। चेहरे पर कसरत नमाज के बायस एक अलग ही नूर था। वो जब जब ज़हरा को मुखातिब करता, आप जनाब कहकर इसका दिल हुजैफा के कदमों में लूटने लगता। इसके खाने पीने, आराम का, इसकी ज़रूरतों का वो ऐसा ख्याल रखता है जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। हालांकि इसका अपने दिल में कई बार दिल मचलता कि वो बाहर से पिज़्ज़ा, चाट, समोसे या कुछ मंगा कर खाए, लेकिन रोज रोज अम्मा से ये कहना बहुत मुश्किल था। लेकिन हुजैफा बिना कहे ही इसे ये सब चीजें लाकर देता तो वो हैरान होती। जब भी घर लौटता इसके हाथ में कुछ न कुछ होता था। लेकिन हुजैफा को घर का खाना बहुत पसंद था और खाने बनाने में वो माहिर थी। मैं जानता हूँ कारी साहब मिजाज के थोड़े सख्त गिर हैं। वो भले ही तुम पर पाबंदियां लगाते होंगे ज़हरा, लेकिन मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। और जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम अपने वालिदैन से मिलने जा सकती हो, अपनी किसी सहेली को यहाँ मिलने के लिए बुला सकती हो। और वो बस इसे देखती ही रह जाती। पहले वो इसकी मोहब्बत का शक करती और अब खुद असीरे इश्क हो रही थी। निगाहें बस दरवाजे पर जमी हुई। इधर हुजैफा दरवाजा खोलता और इधर इसका चेहरा गुलाब हो जाता। सुबह फजर में वही इसे नमाज के लिए उठाता और जहाँ ज़हरा फजर की नमाज पढ़ ले
वो मोहब्बत से इसके चेहरे पर आए रेशमी बाल पीछे करता। ज़ारा की खूबसूरत आंखें नींद से भरी होती, लेकिन इसका लहजा इतना नर्म और मीठा होता कि वो बिस्तर से फौरन उठ जाती थी। हुज़ैफा का घर इसके लिए जन्नत बन चुका था। कहाँ वो इनकारी थी इससे शादी से, और अब एक मिनट इसके बगैर गुजारा नहीं था। इस दिन भी हुज़ैफा इसे अम्मा अब्बा से मिलवाने ले गया। आप चाहें तो एक रात के लिए अपनी वालदा के पास रुक सकती हैं। मेरी तरफ से इजाजत है आपको ज़ारा, वो बड़े प्यार से इसे कह रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई इसका दिल बेचैन सा हो गया। वो ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद सीधा घर चला आता। इसकी निगाहें ज़ारा को तलाश करती थी, पर वो दोनों मिलकर खाना खाते थे। लेकिन वो आएगा तो इससे मैं नजर नहीं आऊंगी। हुज़ैफा का दिल उदास हो जाएगा। इसे खाना कौन निकाल कर देगा? वो अकेले बैठकर खाना खाने लगा। इन्हीं सोचों में मुब्तला वो खामोश बैठी थी जब अम्मा कहने लगी, आजा ज़ारा बेटी, खाना खा ले। नहीं अम्मा, अब्बा से कहें कि मुझे घर छोड़ आए। हैं, ये क्या कह रही है तू? एक रात के लिए रुकने आई थी, हुज़ैफा ने कहा था ना तुझे, फिर क्यों परेशान है? नहीं अम्मा, वो नमाज पढ़कर घर आ गए होंगे, अकेले मुझे ना पाकर परेशान हो जाएंगे। मुझे अभी घर जाना है। और इसकी अम्मा हैरान थी। सच में निकाह के बाद मोहब्बत दिलों में डालने वाली इस खुदा की जात ही है। अपनी बेटी को मोहब्बत से देख रही थी, फिर अब इससे घर छोड़ने आ गया हुज़ैफा। कारी साहब को देखकर बहुत खुश हुआ। इन्हें आप भी साथ में खाना खा कर जाएं, चाय पी लीजिए। बैठकर वो हमेशा ही आजी और बहुत अकीदत से इनसे बात करता था। नहीं नहीं बेटा, ज़ारा की अम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं खाने पर, बस मैं इसे छोड़ने आया था। वापस चले गए थे। ज़ारा मुकम्मल हिजाब में थी। फिर अपना हिजाब उतार कर इसने सर पर दुपट्टा पहन लिया और किचन में चले आई खाना निकालने के लिए। हुज़ैफा इसे देखकर बहुत खुश था। सच में जब वो नमाज से वापस आया तो घर काटने को दौड़ा था। वो बहुत ही अजीब सी उदासी महसूस कर रहा था। शुरू से अकेला रहता आया था, लेकिन ज़ारा का साथ क्या मिला, जैसे जिंदगी में सुकून और राहत ने इसकी दहलीज पर दस्तक दी थी। वो दोनों साथ मिलकर खाना खा रहे थे। ज़ारा इससे हंस हंस कर बात कर रही थी और वो इसे मुस्कुराते हुए मोहब्बत से देखे जा रहा था। खाने का पहला निवाला वो हमेशा अपने हाथ से इसे खिलाता। वो इसकी मोहब्बत पर निहाल हो जाती, फिर दिल ही दिल में दुआ करती कि खुदा इसकी मोहब्बत को हसद और कीना से महफूज रखे। लेकिन कभी कभी मोहब्बत को भी नजर लग ही जाती है। इस दिन आलिया से मिलने चली आई। वो हुज़ैफा की दूर परे की खाला की बेटी थी। कैसी हो भाभी तुम? अम्मी ने कहा है हुज़ैफा भाई से तुम्हारी दावत का, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। न जाने क्यों वो अपनी बीवी को 7 पर्दों में छुपा कर रखना चाहते हैं। इसने ज़ारा के दिल में गलत फहमी का पहला तीर फेंका था। नहीं, ऐसी बात तो नहीं आलिया, इनकी तरफ से मुझ पर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, तो फिर आप हमारी तरफ आती जाती क्यों नहीं? आज कहिएगा हुज़ैफा भाई को जरूर आना, इन्हें लेकर हमारे घर। वो गौर से ज़हरा के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। शादी के 2 महीने हो गए थे। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। अभी भी हल्का फुल्का मेकअप और खूबसूरत लिबास में वो किसी शहजादी से कम न लग रही थी। आलिया दिल ही दिल में जलन का शिकार हुई थी। वैसे हुज़ैफा भाई अपनी पहली मोहब्बत को भूल गए हैं। इतना आसान तो नहीं होता पहली मोहब्बत भुलाना। ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी पहली मोहब्बत? उफ, ये मैंने क्या कह दिया आपको? नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं। प्लीज आप इस बात को दिल पर मत लेना, वरना आप हुज़ैफा भाई से लड़ाई झगड़ा करेंगी और आप दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा होगी। मुझे माफ कर दे, मैं फौरन ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ जा रही हो तुम? बैठो, मैंने चाय बनाई है और समोसे भी तुम्हारे लिए। मुझे बताओ तो सही आलिया, मैं कुछ नहीं कहूंगी हुज़ैफा को। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दें। आप ये नहीं जानती कि हुज़ैफा भाई भले जितने नर्म मिजाज और मोहब्बत वाले हैं, इतना इनका गुस्सा आसमान को छूता है। मैं तो बचपन से जानती हूँ इनका हमारे घर में बहुत आना जाना था। अब मैं चलती हूँ गलत फहमी का तीर फेंक कर। वो चलती बनी और पीछे ज़ारा न जाने क्यों अपना दिल अजीब सा महसूस कर रही थी। अपनी पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं होता। कौन थी हुज़ैफा की पहली मोहब्बत? इसके चेहरे के तासुरात, इसका दिल अजीब सा हो रहा था। मतलब कुछ था। फिर वो किचन में चली आई। अकेले बैठकर वो चाय पीने लगी। गो के इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। हुज़ैफा के सामने इसने आलिया की बात का तज़किरा तो नहीं किया, लेकिन इसके दिल के कोने में एक गिरा सी लग गई थी। क्या हुआ, आज मेरी बेगम साहिबा बहुत उदास उदास से लग रही हैं?
हुजैफा ने प्यार से उसके गाल को छुआ था, जिसने आज ना बाल संवारे थे और ना ही होंठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, वरना रोजाना ही वो इससे बहुत फ्रेश और हंसती मुस्कुराती मिलती थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भारी सा हो रहा है। वो बामुश्किल नरमी से मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ, कहीं बाहर जाकर आज खाना खाते हैं। खाना बनाने की जरूरत नहीं, अगर दिल उदास है तो मुकम्मल आराम करना चाहिए, और मैं तुम्हें यहाँ आराम और सुकून देने के लिए लाया हूँ। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां दूं। ज़ाहरा को इसकी बातें न जाने क्यों बनावटी लग रही थीं, ये शायद इसके दिल में मैल आ चुका था। फिर वो बेदिली से तैयार हुई थी, ब्लू कलर का सूट पहने। क्या फायदा इतने तैयार होने का, ऊपर से लेना तो हिजाब ही है। वो हिजाब भी पहन लिया था, फिर इसे लेकर एक बहुत अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में आ गया था, जहाँ फैमिली के लिए एक अलग इंतजाम किया गया था। वो इस तरह ओट में होकर बैठी कि कोई गैर मर्द इसका चेहरा नहीं देख सकता था। हुजैफा ने सब इसकी पसंद की चीजें मंगाकर सामने रख दी थीं। खाते खाते एकदम ही इसका दिल खराब हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे इसका दिमाग घूम रहा हो। वो बार बार टिश्यू पेपर से अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी। क्या हुआ ज़ारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो इसे देखकर बेचैन हुआ। आप ये खाना पैक करवा रहे हैं? हुजैफा पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी और मतली सी हो रही है। अच्छा ठीक है, इसके कहने पर वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। खाना पैक करवा कर वो इसे घर ले आया। गो के रास्ते में इससे वो बार बार कहता रहा, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, तुम अपना ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह टेस्ट करवाओ। लेकिन ज़ारा ने मना कर दिया। वो इसके लिए बहुत फिक्रमंद था, लेकिन ज़ारा सोच रही थी कि जो कुछ आलिया आजत से कहकर गई है वो इसी का रद्द-ए-अमल हुआ है। सोच सोच कर इसकी ऐसी तबीयत हो गई। आखिर कौन थी वो लड़की हुजैफा की जिंदगी में? फिर क्या इससे वो सिर्फ बनावटी मोहब्बत करता था? आप इतनी खामोश क्यों हैं ज़हरा? खाना भी नहीं खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप प्लीज खाना खा लीजिए और जो बचे इसे फ्रीजर में रख लीजिएगा। नहीं, जब तक आप खाना नहीं खाएंगी मैं कैसे खा सकता हूँ? और आप डॉक्टर के जाने को भी तैयार नहीं हैं। ऐसे आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? वो बड़े प्यार से इसके बालों में हाथ फेर रहा था। हुजैफा की आंखें मोहब्बत के एहसास से चमक रही थी। ज़ारा ने इसके चेहरे को गौर से देखा। क्यों इस मेहरबान फितरत वाले शख्स को इतना सता रही है? ज़हरा की खराब तबीयत से वो हकीकतन परेशान बैठा था। तभी वो उठ खड़ी हुई। हालांकि दिल अभी भी बोझल और अजीब सा हो रहा था, लेकिन वो जानती थी जब तक वो खाना नहीं खाएगी हुजैफा भी खाना नहीं खाएगा। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, खाना लेकर आती हूँ कि दोनों साथ मिलकर खाएंगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी तो हुजैफा खुश हो गया। ये हुई ना बात, बल्कि इसको रहने दो, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं खुद खाना निकाल कर लाता हूँ। तुम्हें इतनी देर तकलीफ करने की जरूरत नहीं। इसके गाल को छूता वो किचन में चला गया। पीछे ज़हरा के दिल से जैसे सारी कसावत दूर हो गई थी। लेकिन अगले 2-4 दिन तक इसकी तबीयत ठीक होने की बजाय मजीद खराब रहने लगी। वो डस्टिंग करती तो खड़े खड़े चक्कर आ जाते, किचन में खाना पकाती तो उबकाइयां शुरू हो जाती। या खुदा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? किचन में रख के स्टूल पर सर थामे बैठी थी जब हुजैफा ने इसे देख लिया। क्या हुआ ज़ाहरा, आप ठीक तो हैं? कितने दिनों से मैं कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के यहाँ ले चलते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती ले जाऊंगा अपने साथ। बस आप जल्दी से हिजाब पहन लीजिए। अब ज़ाहरा से भी अपनी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो भी डॉक्टर के पास चली आई। थोड़े दिन बाद वो मुस्कुराती हुई कह रही थी, मुबारक हो आप माँ बनने वाली हैं। आपकी प्रेगनेंसी को 7 वीक्स हो चुके हैं। वो हैरान थी और खुश भी। जैसे ही डॉक्टर के रूम से बाहर आई, हुजैफा परेशान चेहरा लिए इसके सामने आया था। क्या हुआ ज़ारा, सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? घर चलें, मैं बताती हूँ आपको, शर्माए हुए धीमे लहजे में कहती और इसके साथ घर आ गई। फिर जैसे हुजैफा को बताया, बेख्तियार वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मेहरबानी है उस रब की मुझ गुनहगार इंसान पर कि पहले इसने आप जैसे इतनी अच्छी खूबसूरत मोहब्बत करने वाली बीवी अता की और अब इतनी जल्दी मुझे औलाद का तोहफा दे रहे हैं। यकीन नहीं आता अपनी खुशकिस्मती पर। हुजैफा की नम आंखें देखकर खुद ज़ाहरा की आंखें भी भीग गई थीं। वह इसके सीने से जा लगी थी। इस खुशी को पूरी तरह महसूस करती हुई हुजैफा ने नरमी से इसे अपनी पनाहों में ले लिया था।
پھر اس کی پیشانی کو چوم کر گویا اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ پھر اس رات وہ دونوں اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ زہرا نے بھی عالیہ کی اس دن کی ہوئی باتوں کا زہر اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ کسی کی باتوں میں آ کر کیوں اپنی زندگی اپنے خوبصورت لمحات کو برباد کرے۔ اماں اس سے ملنے آئی تو اس نے انہیں بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی، اللہ تجھے بھی زندگی، صحتیں اور تیرے ہونے والے بچے کو بھی۔ میں قربان جاؤں، اس مالک کی رضا کی ایک اکلوتی اولاد تھی اور اس کی خوشیاں دیکھنا مجھے نصیب ہو رہی ہیں۔ جا کر بتاؤں گی تیرے ابا کو کتنا یاد کرتے ہیں وہ تجھے، اور تو ایسے حذیفہ کی ہوئی کہ ایک رات کے لیے رہنے بھی نہیں آتی اپنی اماں ابا کے پاس۔ اماں اس سے گلہ کر رہی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا کروں اماں، وہ بھی تو یہاں اکیلے رہتے ہیں، اگر میں ایک رات کے لیے بھی چلی جاؤں گی پیچھے انہیں کتنی پریشانی ہوگی۔ ماں صدقے میری بچی، تو اپنے گھر میں خوش رہے اپنے شوہر کے ساتھ، بس یہی تو ہم دونوں چاہتے ہیں۔ وہ انہیں دعائیں دے رہی تھی۔ زہرا نے جب حذیفہ سے شادی سے انکار کیا تھا تو وہ سوچتی تھی کہ شاید میری طبیعت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہ جانے آنے والی زندگی ہو اس کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ وہ ایک نیک سعادت مند بچہ ہے، لیکن جب ان دونوں کی آپسی محبت کو دیکھتی تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ اب حذیفہ پہلے سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ اچھا خاصا وقت مدرسے میں گزار لیتا تھا، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر وہ جلدی گھر آنے لگا۔ فروٹس کا ڈھیر اس کے سامنے لگا لیتا، زبردستی سے روزانہ ایک گلاس دودھ کا دیتا۔ وہ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو جاتی، ورنہ یہ سب چیزیں اسے سخت ناپسند تھیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، اب اسے 5واں مہینہ لگ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے عالیہ اس سے ملنے نہیں آئی تھی اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ اس گھر میں آئے۔ البتہ اس کی ماں 2-3 دفعہ اس کے خیر خیریت پوچھ گئی تھی۔ آج اس کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی تو وہ سوچنے لگی کہ دوسرے کمرے کی صفائی کر دیتی ہے، کیونکہ اس میں پرانا سامان پڑا تھا۔ الماریوں میں ایسے کپڑے تھے جو کئی ضرورت مند کے کام آ سکتے تھے، وہ انہیں نکالنے کا سوچ رہی تھی۔ جیسے الماری کی صفائی کرنے لگی، الماری کے آخری کونے میں رکھی ہوئی کچھ تصویریں نیچے زمین پر جا گریں۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے یہ تصویریں اٹھائیں اور پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے تھے، گلے میں دوپٹہ ڈالے۔ وہ ایک تصویر نہیں بلکہ 10-11 تصویریں تھیں جو مختلف مواقع پر کھینچی گئی تھیں۔ لڑکی تھی بھی بہت خوبصورت اور بالکل عالیہ جیسی لگ رہی تھی۔ کہیں اس کی کوئی بہن وغیرہ تو نہیں؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ جیسے اس نے الٹ پلٹ کر کے تصویروں کو دیکھا، ان کے پیچھے لگی تحریریں دیکھ کر اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ میری محبت، میری جان حوریہ، خدا سے دعا کروں گا پھر تم جلد میری زندگی میں آ جاؤ۔ بلیک اور بلو مارکر سے لکھی ہوئی تحریر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ تو کیا یہی تھی وہ حذیفہ کی پہلی محبت جس کے بارے میں عالیہ نے کہا تھا؟ اسے اپنا دل گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سارا سامان ایسے پھینک دیا اور وہ تصویریں اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے لا کر رکھ دیں۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ تو یہ سب دکھاوا تھا حذیفہ احمد، تمہارے دل میں تو کوئی اور بستی تھی، محبت کسی اور سے بھی، اور شادی مجھ سے، لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری پہلی پسند نہیں تھی تو پھر تم نے محبت کا ڈرامہ کیا میرے ساتھ۔ بہتر ہوتا یہ ایک نارمل میاں بیوی کی طرح ہم دونوں زندگی گزارتے۔ میں تم سے اتنی شدید محبت نہ کرتی تاکہ اب یہ دیکھ کر میرے دل کو دھچکا تو نہ پہنچتا۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں۔ پھر رات کو بھی حذیفہ واپس آیا تھا، وہ اپنی دھن میں تھا، کپڑے اٹھا کر ورنہ اسے تبدیل کر لیے تھے۔ آج کسی کام کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر میں تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن نہ زہرا نے کھانا بنایا تھا اور اسے دیکھ کر جذباتی ہو کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی بھیگی محترم آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، کیا ہوا مجھے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج پہلی بار زہرا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ اس کے ایسا کرنے پر بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیا۔ اچھا، تو جان ناراض ہے ہم سے کہ میں اتنی دیر سے آیا ہوں، اس لیے کیا کروں، جلدی آنے کی کوشش کی لیکن ان کی دیر ہو گئی۔ وہ پیار سے اس کے گال کو چھو رہا تھا ہمیشہ کی طرح، لیکن زہرا موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اچھا بتائیں، کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس حالت میں آپ کے لیے پریشانی، ٹینشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔
ज़ारा, जो भी बात है आप मुझे बताएं। इसके इतने नर्म मोहब्बत से भरपूर लहजे पर एक बार फिर से इसका दिल धड़क रहा था। तभी वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, बस कीजिए अपनी मोहब्बत का दिखावा करना। मैं जानती हूँ आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, सब दिखावा करते हैं, इसलिए कि अब्बा ने शादी कर दी है मेरी आपसे। दूसरी तरफ आप किसी और से मोहब्बत करते थे, किसी और को दिल में बसा रखा था। मैं आपकी पहली पसंद नहीं हूँ। मुंह फुलाए इसने गुस्से में हुजैफा की तरफ देखा था और वो इसके गुस्सा होने पर मुस्कुरा लिया। इतने धीरे से हंसा कि ज़ारा इसे देखती रह गई। मैं भला क्यों नहीं दिखावा करूंगा आपसे मोहब्बत का। इस लड़की को देखने के लिए मैं सुबह सुबह मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, हालांकि इसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता था, सिर्फ आंखें नहीं थी जिनमें शदीद गुस्सा और बरहमी होती थी। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये मेरी मोहब्बत की सच्चाई है कि आप मेरे सामने बैठी हैं। सिर्फ अभी नहीं, बचपन से मोहब्बत करता आया हूं आपसे। ज़ाहरा इसकी बात पर हैरान रह गई। इसने आकर इस बात का तज़किरा नहीं किया था। क्या मैं आपकी पहली मोहब्बत हूँ? वो चबा चबा कर इससे पूछ रही थी। ना सिर्फ पहली बल्कि दूसरी, तीसरी और आखिरी भी। हुजैफा की मुस्कुराहट में कोई कमी ना आई थी। फिर वो एकदम ही उठी थी और गुस्से में अलमारी से वो तस्वीरें निकाल कर ले आई। अच्छा, अगर मैं पहली मोहब्बत हूँ तो ये कौन है जिसकी तस्वीरों के पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मेरी जान, मेरी मोहब्बत? ये सब क्या है? इसने वो तस्वीरें हुजैफा के सामने रख दी थी। अब के इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। ओहो, तो ये मामला है। फिर आप अपनी जगह पर ठीक है। अगर किसी भी मोहब्बत करने वाली बीवी के सामने ऐसी तस्वीरें आएंगी तो जाहिर है वो आप जैसा ही रिएक्ट करेंगी। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब बता देता हूँ। बतौर एक मुसलमान होने के नाते मैं आपको कुछ झूठ नहीं कहूंगा, इतना तो यकीन कर सकती है ना आप मेरा। वो इतने प्यार से बोला कि ज़ारा को हाँ में सर हिलाना पड़ा। हुजैफा ने एक गहरी सांस ली थी, फिर वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, ये तस्वीरें आलिया की बहन हुरिया की हैं। इसके दिल में मेरे लिए कुछ ऐसे जज्बात है, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैं इसके लिए अपने दिल में कोई जज्बात नहीं रखता था। ज़ारा ने चौंक कर इसे देखा था। 8 साल का था जब माँ बाप से इसे जुदा हो गए। चाचू ने इन्हें पाला था और ये घर इसके बाप और इसके चाचू का ही था जिसमें वो रहता था। छोटा सा था, इसका झुकाव दीन की तरफ कुछ ज्यादा ही था। यही वजह थी कि इसने एक हाफिज़े कुरान बनने का फैसला किया था। साथ पढ़ाई भी करता और कुरान पाक ये हिफ्ज करता। इसको खुदा ने जहानत जैसी नेमत से नवाज रखा था। वैसे तो ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन अम्मी की दूर परे की एक कजन यहीं पर रिहाइश पसीर थी। अक्सर वो चाचू से मिलने आ जाती थी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। हुरिया बड़ी थी जबकि आलिया छोटी। दोनों बहनें बड़ी बेबाक किस्म की लड़कियां थी। जब भी हुजैफा घर में होता वो दोनों इसके बारे में बातें कर करके इसका मजाक उड़ाती। लेकिन जैसे वो जवान होने लगा, इसकी खूबसूरत उठान नाक नक्शा, कुछ 5 वक्त नमाज अदा करने की वजह से इसका नूरानी चेहरा वो बहुत ही मुनफरिद नजर आता था। कभी आंख उठाकर भी इन दोनों बहनों की तरफ नहीं देखता। इसके निगाहें तलाश करती थी तो इसके सर पर हाथ रखने वाली कारी साहब की बेटी ज़ाहरा को, वो बेनियाज सी लड़की जो इसे नजर भरकर भी ना देखती थी। शुरू शुरू में वो जब छोटा था इनके घर चला जाता, तभी कारी साहब का कोई पैगाम लेकर, तो कभी इनका खाना वगैरह लेने। वो 10 साल की थी, मोटी काली बंदे जहन में खिल रही होती थी। लेकिन जैसे जवान हुई इसने इसके सामने आना छोड़ दिया था। हुजैफा भी जवान हो चुका था। अब वो ना काले साहब के घर जाता था और ना ही ज़ाहरा इसे नजर आती। हाँ, लेकिन एक दिन काले हिजाब में लिपटे लड़की को इसने कॉलेज जाते हुए देखा तो दिल धड़कने लगा। वो इसकी स्याह घनी पलकों वाली आंखें पहचान गया था। इसने तो गैर इरादी तौर पर नजर उठाई थी, लेकिन इसने जान लिया था कि ये ज़ाहरा है, इसके बचपन की मोहब्बत। अक्सर इसे देखने के लिए वो जानबूझकर इस रास्ते में खड़ा हो जाता, बस एक नजर ही काफी होती। इसका पूरा दिन बहुत खुशगवार गुजरता था। लेकिन दूसरी तरफ खाला की बेटी हुरिया थी जो इसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। हुजैफा और इसके जज्बों की खबर ना थी। वो तो खुद मोहब्बत के रास्ते पर गामजन था। चचा के जाने के बाद वो घर में अकेला रहता था, लेकिन एक दिन अचानक ही वो रात को अकेली इससे मिलने चली आई। हुरिया का अकेले आना इससे नागवार गुजरा था। तभी वो इससे नरमी से कहने लगा, आप वापस चली जाएं। एक मर्द और औरत के बीच में सिर्फ शैतान होता है और कोई नहीं।
आपको ज़ेब नहीं देता कि किसी नामहरम के पास यूं रात को जाएं। हुज़ैफा ने बेरहमी का इजहार किया था, लेकिन वो ढीठ बनी खड़ी रही। मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हूँ, हर पल तुम्हारी एक नजर के लिए तड़पती रहती हूँ, और तुम मुझे निगाह उठाकर देखते भी नहीं। हुरिया की शिद्दत भरी नजरें इसके वजूद पर जमी थी। वो थोड़ा परेशान हो गया, फिर जानबूझकर कमरे में चला गया ताकि हुरिया इसे खुद ही नजरअंदाज किए जाने पर यहाँ से चली जाए, लेकिन वो बजाय जाने के इसके कमरे में चली आई। हुज़ैफा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो। अचानक ही वो इसके कदमों में बैठ गई। हुज़ैफा के लिए इज्जत और वकार का मसला था। वो दूर के रिश्तेदार थे, वो इसके लिए नामहरम था, और ये लड़की बिना दुपट्टा सर पे ओढ़े इसके सामने बैठी थी। हुरिया से वो दिल ही दिल में शदीद नफरत महसूस कर रहा था। अब चली जा यहाँ से, वरना मैं चला जाता हूँ। ये कहकर वो जैसे बाहर जाने लगा, अचानक हुरिया ने हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। क्यों इतने संगदिल बन रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुकी हूँ? प्लीज मुझे अपना लो, वरना अम्मी अबू मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। अब के हुज़ैफा ने इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो हद से आगे बढ़ रही थी और इसे रोकना बहुत जरूरी था। तभी उंगली उठाकर इसे जाने का इशारा किया और हुरिया अपने गाल पर हाथ रखे हक्का बक्का खड़ी थी। इसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं, जैसे जुनून की आखिरी हदों को पहुंच गई हों। फिर वो इसे घूरते हुए वहां से चली गई। अगले दिन वो खाला रुकैया के पास जा पहुंचा। आप अपनी बेटी को संभाल कर रखें, ना सिर्फ ये खुद को बल्कि मुझे भी बदनाम करना चाहते हैं। क्यों, क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी ने? खाला रुकैया परेशान थी। हुज़ैफा ने सब कुछ बता दिया। कमरे की खिड़की से हुरिया से देखे जा रही थी तो खाला रुकैया कहने लगी, तो शादी तो तूने करनी है हुज़ैफा, फिर मेरी बेटी से कर ले। माफ कीजिएगा खाला, खुदा आपकी बेटी का नसीब अच्छा करे और इसे नेक अमल की तौफीक दे, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं कर सकता। इसने मुंह पर ही हुरिया को ठुकरा दिया। फिर खाला के घर जाना ही छोड़ दिया। दूसरी तरफ वो गमो गुस्से से पागल हो रही थी। छोड़ दो तुम इस मौलवी का पीछा, न जाने वो कौन सी हूर परी की तलाश में है। आलिया ने इसे समझाया था, फिर खाला ने भी दूसरी जगह इसका रिश्ता तय करके शादी कर दी और हुज़ैफा अब बहुत एहतियात करने लगा था। लेकिन जब 1 साल गुजरा, वो खुद ही कारी साहब के पास जा पहुंचा अपनी शादी की ख्वाहिश लेकर। जाहिर है वो एक नौजवान था, वक्त पर शादी कर लेने से वो बहुत सी बुराइयों से बच सकता था। कारी साहब शुरू से हुज़ैफा को बहुत पसंद करते थे कि जब इन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया तो वो सोच भी नहीं सकता था कि वो मोहब्बत और वो चाह जिससे वो बचपन से ही आरजू करता आ रहा है, वो इसे यूं इतनी आसानी से मिल जाएगी। खुदा इस पर यूं भी मेहरबान होगा। ज़ाहरा इसके जिंदगी में क्या आई, जैसे वो अपने आप को भूल गया था। वो पूरी शिद्दत से इसे चाहता था, 1 मिनट भी इसके बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन ये गलत फहमी फैलाने वाली आलिया ही थी। इसने जानबूझकर इस अलमारी में हुरिया की तस्वीरें रखी थीं। इन पर वो तहरीरें जिसे लिखने के बारे में कभी हुज़ैफा सोच भी नहीं सकता था। ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। आलिया को हसद महसूस होता जब जब वो हुज़ैफा और ज़हरा को साथ खुश देखती। इसने मेरी बहन की जगह ली है। अगर आज हुज़ैफा इससे शादी कर लेता तो इसका दिल यूं ना टूटता। वो अपने ससुराल में थी, हर वक्त लड़ाई झगड़े और शौहर से इसकी ना बनती थी। वो सुख में ना रह रही थी। आलिया को यही देखकर बहुत गुस्सा आता। इसने ज़हरा के दिल में जानबूझकर गलतफहमी पैदा की थी, जिसे अना का मसला बनाकर ज़हरा आज इसके सामने रो पड़ी थी और इससे नाराज थी। लेकिन हुज़ैफा ने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर इसके दिल का फितूर साफ कर दिया था। ज़हरा शर्मिंदा सी ये सारी बातें सुन रही थी। इसे इतना तो यकीन था कि हुज़ैफा इससे गलत बयानी नहीं करेगा। जो भी हकीकत थी इसने बताकर ज़हरा का दिल साफ कर दिया था। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया, वो शर्मिंदगी से नजर झुकाए कह रही थी। हुज़ैफा मुस्कुरा दिया। नहीं ज़हरा, आप माफी मत मांगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही गलतफहमी का शिकार हो जाता। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसने ज़हरा की नम आंखें साफ की थीं। वो जो सुबह से शदीद परेशानी और डिप्रेशन में रो रही थी, अब एकदम से इसके सारे दिल की कसाफत दूर हो गई। फिर हुज़ैफा इसे समझाते हुए कहने लगा, जैसी कंडीशन आपकी है, इस हालत में ज्यादा परेशानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद पैदा हो।
आपको किसी भी चीज की जरूरत है या कोई वजह आपको परेशान कर रही है, इससे वादा करें कि आप सबसे पहले मुझे बताएंगी, इसके बाद दिल में बदगुमानी लेकर आएंगी। हुजैफा ने तो इसे शर्मिंदा सा कर लिया था। फिर वो सारी बातें भूलकर अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें करने लगी। हुजैफा इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। इस दिन हमना इससे मुलाकात करने चली आई। वो इसके कॉलेज फ्रेंड थी। वाह भाई, इस मौलवी की संगत ने तो तुम्हें बिल्कुल बदल कर रख दिया, पहचान ही नहीं जा रही हो। ये इतनी गुलाबी गुलाबी सी क्यों हो रही हो? ज़हरा शर्मा गई, फिर इसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वो और हैरान हो गई। अरे वाह, पहले तो कहती थी कि मैं किसी मौलवी से शादी नहीं करूंगी, और अब शादी हुई तो इतनी दीवानगी कि इसका बच्चा पैदा करने जा रहे हो। शाबाश भाई, वो इसे छेड़ रही थी। ज़ारा ने इसे घूर कर देखा। वो ऐसे नहीं है, मैंने बहुत गलत समझती थी, लेकिन हम ना वो इतने अच्छे दिल के हैं कि इन्होंने मुझे भी अपना असीर कर लिया है। सच कह रही हूँ, एक शफाफ मोहब्बत करने वाला दिल होना चाहिए। हर किसी की किस्मत में ये मुखलिस मोहब्बत नहीं होती। इसके लहजे में गहरी उदासी थी, जिससे महसूस करके ज़ाहरा परेशान हो गई। क्यों, क्या हुआ है? क्या तुम्हें वो मोहब्बत नहीं मिली? हमना ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मोहब्बत तो दिल की बात है, इसकी परछाई भी नहीं मिली। मैं जिसे मोहब्बत समझती थी वो एक धोखा निकला। मेरा मंगेतर रोहान एक नंबर का धोखेबाज था। मेरे अलावा भी कई लड़कियों से इश्क लड़ा चुका था। अभी इसने मुझसे मंगनी तोड़कर एक मॉडल से मंगनी कर लिया। अनकरीब इससे शादी करने वाला है। इसके लहजे में गहरा दुख था। ज़ारा को बहुत अफसोस हुआ। मैं दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा हमसफर अता करे, जो तुम्हें हमेशा खुश रखे। ज़ारा की दुआ पर इसने इसे गले लगा लिया था, और मैं दुआ करूंगी कि तुम हुजैफा के साथ ऐसे ही खुशगवार जिंदगी गुजारने वाला बच्चा भी तुम्हारी जिंदगी में मजीद खुशियां लेकर आए। वो इसे दुआएं दे रही थी। ज़ारा की आंखें नम हो गईं। अपनी दोस्त की अधूरी मोहब्बत पर इसे बहुत रोना आया था। अम्मा एक औरत को लेकर चली आए तो वो हैरान रह गई। ये कौन है अम्मा? अरे बेटा, ये नसरीन है। हुजैफा ने मुझे कई दिन पहले कहा था कि वो एक मासी रखना चाह रहा है घर में। बेटा, तुम्हें 8वां महीना लग गया है, इसलिए घर में इसका होना बहुत जरूरी है। ये बहुत नेक औरत है, बेवा है, तुम्हारी खिदमत भी करेगी, तुम्हारे पाँव में मालिश भी करेगी, घर का सारा काम भी संभाल लेगी। ज़ारा इस गरीब औरत को नर्म निगाहों से देख रही थी। साथ ही हुजैफा की मोहब्बत पर इसका दिल बाग बाग हो गया। कितनी देर कितनी मोहब्बत करने वाला इसका शौहर था। इसने मासी नसरीन को सारे काम बता दिए थे। फिर अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेट गई और इसका हाथ थाम कर कहने लगी, इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी मैं अम्मा। अगर आप मुझे सही वक्त पर ना समझाती और मेरी इज्जत के आगे हार मान जाती तो शायद आज मैं इन खुशियों से महरूम हो जाती कि हुजैफा की मोहब्बत और इसकी बेपनाह चाहत वाले नसीब को ठुकरा कर न जाने कौन सी तकलीफें मैं अपनी जिंदगी में लाने वाली थी। इस वक्त को सोच कर कांप जाती हूँ जिस लम्हे वो अपनी अम्मा से शादी करने से इनकार कर रही थी। अम्मा मुस्कुराती थी तो कहते हैं, बेटा, खुदा के हर काम में मसलहत होती है। खुदा हर बेटी का नसीब तुम्हारे जैसा करे, खुश नसीबी इसका मुकद्दर ठहरे। माँ बाप को और क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अचानक हुजैफा की आवाज पर वो दोनों चौंक कर उठी थी। कैसे हो बेटा, तबीयत कैसी है आपकी? अम्मा ने इससे बड़े प्यार से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ज़ारा के लिए एक औरत का बंदोबस्त कर दिया। अब मैं सुकून से अपनी नौकरी कर सकूंगा, वरना मेरा दिल परेशान रहता था इसके लिए। वो मोहब्बत से ज़ारा को देख रहा था। ममता की चमक इसके दिल पर नूर बनकर बरसी थी। अम्मा इससे मिलकर चली गई थी। वो भी अपने कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद हुजैफा भी आ गया था। ज़ारा ने अपना सर इसके घुटने पर रखा तो वो मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि हमल में औरत को एक मर्द की मोहब्बत और इसकी तवज्जो की कितनी जरूरत होती है। वो इसे भरपूर तवज्जो दे रहा था, अपना प्यार इस पर टूट कर बरसा रहा था। तभी तो न जाने वो कब लेटे लेटे सो गई, इससे पता भी न चला।